children, today we discuss the first activity. The activity first you have to verify that the relation R in the set L of all lines in a plane defined by the R, or this is the based on your questions. You collect from this activity from your activity book. Your last year book you have that class 12 full circle या any other book you have required. You have, then you will write this activity. The first activity. Second activity you will complete this to demonstrate a function which is 1 but not on 2. The two activities based on your relational functions. Clear not? In this activity you will come question in board exam also. Clear? The two activities. Total activity you will complete in 6 activity, not 10 activity. You will complete only 6 activity this year. Clear? Because your syllabus has reduced, then most important activity or 10. 6. Activity number 3. To establish a relation between common logarithm to the base 10 and natural logarithm to the base e of the number x. So the method, those are in the two types log, we have 10 base and e base. And next, fourth activity or to understand the concept of decreasing and increasing and increasing functions. And this activity is the theoretical part very deeply explained in the video lectures. You look this here how to increase, how to decreasing in the functions. What is the process? Why this process? ठीक है? तो ये जो सारा प्रोसेस समझ में क्लियर कर रखा है आपका इंडियन का. तो आपका this is not it. The next 5 and 6 activity are left. Activity 2 to understand the concept of
local maximum and local minimum. Local minimum और एक्टिविटी 6 जो लास्ट एक्टिविटी आपके पास है, और इसका भी मैंने वीडियो में थ्योरेटिकल पोर्शंस है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड लोकल मैक्सिमम मिनिमम। ये जो आप लेक्चर वहाँ आपको वीडियो में पढ़े हैं, वहाँ से या यूट्यूब से आप देख सकते हो। अगर वहाँ से हट गए तो यूट्यूब में है अवेलेबल, मैथ्स कैफे नाम से खोलो और उसमें सारे लेक्चर डाल देते हैं, या आपको वहाँ अवेलेबल है वहाँ से, अदरवाइज मैथ्स कैफे सब देख सकते हैं मेरे नाम से। क्लियर? मैथ्स कैफे सीरियस वीडियो, तो वहाँ पर मैंने सारी इसका एक्सप्लेनेशन डाल रखा है। क्लियर? तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या है। क्लियर? या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट क्या है वहाँ पे, तो वहाँ से आप लेकर के अंडरस्टैंडिंग करके आप या बुक की हेल्प से या बुक की हेल्प से आप कर सकते हैं। क्लियर? एक्टिविटी 6 लास्ट ईयर to verify that among all the rectangles of the same perimeter the square has the maximum area। तो 6 एक्टिविटी आपने करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बेसिस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप एक्टिविटी करेंगे तो वहाँ भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा, मल्टीपर्पज़। क्लियर? वो एक्टिविटी मैंने यूज़ कर दी जो आपको सिलेबस में दी थी, तो उसका हम लेकर इसको यूज़ करना है, तब तक आप उन्हीं का यूज़ करो जो आपके एग्जाम में भी आपको यूज़ करना है। क्लियर? और कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स आती है तो एक्टिविटी बुक, अदरवाइज यू कॉन्टैक्ट मी, अदरवाइज यू टेक द हेल्प ऑफ दी लेक्चर वीडियो आपके पास है यूट्यूब में, वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। क्लियर? ये नॉट देन 6 एक्टिविटी। और एक्टिविटी जरूरी नहीं कि आपको उस एक्टिविटी बुक में करनी, आप फाइल भी अरेंज कर सकते हो, जैसे आपको अपनी कन्वीनियंट लगता है, सुविधा लगती है कि क्या आपको फाइल में करना चाहे फाइल में करो, या एक्टिविटी बुक में चाहे एक्टिविटी में करो। क्लियर? डन? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक योर वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा विल स्टडी हियर about your vectors. Some study you are doing science and some we are discussing same discussion in maths. For maths में mostly we are discussing the numerical types. So what is the vector, types of vectors, representation of vectors, direction cosine direction ratio of vectors and free vectors. So in this time what we will study in the maths. A science process is a different types. So first we will discuss here what is the vector, वेक्टर है क्या चीज। क्लियर? सेकंड वी डिस्कस here representation of vectors। थर्ड what is the types of vector, position vector, position vector। फोर direction cosine and direction ratios, direction cosines and direction ratios। and fifth types of vector abscissa, free वेक्टर्स। उसके बारे में बता देंगे फ्री वेक्टर्स क्या चीज़ होती है, कैसे इनको ऐड करना क्या है, फ्री वेक्टर का कंसेप्ट क्या है। तो मोस्टली 5, 6 एंड अदर थिंग्स में और भी सब एक्चुअली ऐड होते जाएंगे साथ साथ। क्लियर? मोस्टली पार्ट ऑफ दिस वेक्टर इज द 5, 6।
तो फर्स्ट थिंग व्हाट इज द वेक्टर? तो वेक्टर क्या है? वेक्टर अभी तो हमने आपको बताया कि वेक्टर साइंस में थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो सकता है, पर जैसे हम वेक्टर की बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की। कितने टाइप्स की होती हैं? तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वहाँ पे हम क्वांटिटी पढ़ते हैं मोस्टली फिजिक्स में, ठीक है। यहाँ पे हम लाइन के बारे में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने क्लास 11 में पढ़ा था टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइंस, दिस इज द क्लास 11 पार्ट। और क्लास 11 में हम स्टडी की थी 2 डायमेंशंस में, यानी 2D में, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्लेन में। बट यहाँ पे हम वेक्टर लिख करने वाले हैं क्या है? 3 डायमेंशंस में। कितने डायमेंशन में? 3D के अंदर। क्लियर? तो सपोज कोई लाइन है, डायरेक्टेड लाइन है, दिस इज अ डायरेक्टेड लाइन, दिस डायरेक्टेड लाइन इज कॉल्ड दी वेक्टर। तो इसी लाइन के बारे में डिफरेंट टाइप की लाइन, उसकी डायरेक्शन डिफरेंट टाइप की हो सकती है, पर यहाँ पर मैथ्स में हम वर्क करेंगे वो डायरेक्टेड लाइन के ऊपर करेंगे, ठीक है। अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। यहाँ पे जो हमारी डायरेक्शन बनेगी, अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। तो यहाँ पे हमारा ये क्वांटिटी है, इस वेक्टर को जो भी हमारी क्वांटिटी होगी उसके अंदर अगर कुछ डायरेक्शन हमारे पास आ रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे? वेक्टर। जैसे फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आती है, फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या आपके पास? एक तो आती है वेक्टर क्वांटिटी, एक आती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है आपके पास? फॉर एग्जाम्पल है वेलोसिटी, और इसमें क्या है? जैसे स्पीड, और क्या सकता है इसमें? एक्सीलरेशन। इसमें क्या आएगा? मास और टेम्परेचर, और मतलब इस टाइप आपके फोर्स किसमें आएगा? इसमें आएगा। तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये आपका वेक्टर है। तो वेक्टर में हमारे पास मोस्टली हम फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं क्या है? क्या है? क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। तो वेक्टर को पहले तो वेक्टर ही है, सेकंड थिंग से वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हाउ टू रिप्रेजेंट ऑफ द वेक्टर्स? सेकंड पॉइंट है कि रिप्रेजेंट कैसे करना है। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको इसको ये लाइन मैंने दिखाया, इस लाइन का ये पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट O है और ये पॉइंट सपोज इसका A है, तो नेम ऑफ दिस पॉइंट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम क्या है? टर्मिनल पॉइंट। कल भी हमने बताया था, आपने बताया था। तो इस पॉइंट का नाम क्या है? इनिशियल पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या है? टर्मिनल पॉइंट। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? ओ ए वेक्टर, इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। डन इट। यह सपोज हमारा कोई वेक्टर हमारे पास इस तरह से है और इसको हमने कोई वेक्टर नाम दे दिया ए, तो इसको हम किसी मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉट ओ ए या नॉट ए या बी सी, कोई भी लेटर में दे सकते हैं आप, पी क्यू आर। तो यहाँ पे सपोज ये पॉइंट है आपकी कोई नंबर से रिप्रेजेंट करना है तो ओ ए कैसे कर सकते हैं, और सपोज आप किसी मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करना है, किसी वैल्यू से करना है, वेक्टर 3, वेक्टर 2, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो देन वी कैन रिप्रेजेंट दिस वे। क्लियर? क्लियर? वेक्टर आर, इसको हम कोई भी वेक्टर आर या वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, in this way you can represent vector in 2 methods. First technique here 2 letters, first technique with help of the magnitude. Done it? Third point, this is not it? Third point, what is the third point here? Third point, what is the third point here? Position vector. So now look here, position vector. Suppose आपने ओ ए वेक्टर लिया है, तो इसका हमने क्या लेना है? पोजीशन वेक्टर ए बी क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ए माइनस बी, तो मीन्स पोजीशन वेक्टर ए का आपका बनेगा, उसको हम लेंथ से मेजर कर सकते हैं ओ ए,
what is the length of this vector? What is the magnitude of this? Magnitude of the vector means length of the vector. उस वेक्टर की लेंथ कितनी है? क्लियर? और दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द हेल्प ऑफ द मॉड्यूलस. इसको मॉड्यूलस साइन हो सकते हैं या मैग्नीट्यूड. और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या है, हमारे पास क्वांटिटी आएगी, फिजिकल क्वांटिटी आएगी. ठीक है, तो वेक्टर है उसका फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है तो उसको मॉडुलस फाइंड करना पड़ेगा. और इसकी भी वैल्यू होती है, डिपेंड करती है, जैसे हमने कहा 3 डायमेंशन में x² + y² + z². क्लियर? इसको ना डायग्राम बनाएंगे और वीडियो और अच्छा हो जाता है. डायग्राम बनाओ, क्लिक कर दो. इसका पोजीशन वेक्टर में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? इतना समझ आ गया? This one is x, this one is y, and this one your z. Connected. ये 3 डायमेंशन में बन गया. क्लियर? दिस इज द x एक्सिस वाली, ये x है y. दिस वन इज द y, दिस वन इज द x एक्सिस. और दिस इज, तो सपोज हमने क्या वेक्टर यहाँ पे ले लिया p. क्लियर? इसकी जो लाइन हमने यहाँ से ली, x में क्या ले लिया हमने? a लाइन, y में क्या ले लिया? b, और z में क्या ले लिया? c. तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? इन दिस पॉइंट a, b, c. a, b, c. तो ये आपका क्या है क्वेश्चन वेक्टर. हम कैसे निकालेंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट? हम देखेंगे कि ए बी सी होंगे. क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि अगर हमारे ये पॉइंट अगर चाप हमने यहाँ पे ले लिए, उस कॉर्नर से ओरिजिन, अगर उस पॉइंट को ये दिस इज द ओरिजिन पॉइंट हो, और कॉर्नर में ओरिजिन ले लें, तो इसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है? दिस इज द हाइट. तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे ए बी सी. अकॉर्डिंग एक्स एक्स की जो लेंथ है वो ए है, वाई एक्स की लेंथ बी है, और जेड एक्स की लेंथ क्या है? सी. तो वेक्टर जो पी आपका बनेगा वो हमारा बनेगा इस तरीके से. वेक्टर पी क्या बन गया? क्या ये वेक्टर पी बन गया. क्लियर? इसी वेक्टर पी को आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर है ना? तो ओबी का वेक्टर आपके पास आया, दिस वन द ओबी वेक्टर. व्हेन यू फाइंड आउट द ओबी वेक्टर, देन यू कैन सॉल्व विद हेल्प ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. मतलब व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? यहाँ पे x y z हो सकते हैं, पॉइंट ए बी सी हो सकते हैं, पॉइंट पी क्यू आर हो सकते हैं. दिस डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट्स, या कोई नंबर 1 2 3 4. क्लियर इज नॉट? क्लियर नॉट? तो दिस इज डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन ऑफ वेक्टर. और सपोज कोई पर्टिकुलर कोई वेक्टर हमारे पास है तो हम उसको ओपी या ओ आर या ओ क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट सपोज कोई वेक्टर हमारे पास कैसा है, पता नहीं, वेक्टर का मालूम नहीं कि कौन सा है, तो उसको हम वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं उसको? वेक्टर आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर? समझना कितना? तो ये इसका प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो स्पेस हमें पता है तो हम इस तरह से, स्पेस पता नहीं है तो वेक्टर आर से डायरेक्ट रिप्रेजेंट हो जाएगा. फिर ओपी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें. डन? आफ्टर दैट इसके बाद क्या था? नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या था? व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट हियर? डायरेक्शन. आपने नोट नहीं किया था? डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शंस रेशियो. तो डायरेक्शन कोसाइन में हम इसी फिगर में डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं. सपोज इसका भी फोर्थ पॉइंट है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है. सपोज हम स्ट्रेट लाइन में वहां पे स्लोप निकालते थे. कहाँ पे? स्ट्रेट लाइन में जब हम स्लोप निकालते लाइन के, वो भी क्या है? एंगल था. तो ऐसे ही सेम वहां पे 2 डायमेंशन था, यहाँ पे 3 डायमेंशन है. तो यहाँ पे कितने एंगल्स में फॉर्म्ड होंगे? 3 एंगल्स. हाउ मेनी एंगल्स फॉर्म्ड हियर? 3 एंगल. तो सपोज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, एंगल इज फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो नाउ एक्स एक्सिस में जो हमें क्या है, ऑल एंगल किसमें होने चाहिए? ऑल एंगल्स पॉजिटिव डायरेक्शन. जो हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं वो क्या है? डायरेक्शन एंगल से. कैसे निकालते हैं?
डायरेक्शन कोसाइन किससे निकालते हैं? डायरेक्शन एंगल से। पहले हम डायरेक्शन एंगल को सेटअप करेंगे तब डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, और वही वर्क हम वहाँ पे करते थे, पर वहाँ 2D में था। तो डायरेक्शन एंगल कोई डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस में क्या था? एक्स एक्सिस में सपोज हमने क्या निकाला है? अल्फा एंगल। वाई एक्सिस में हमने क्या निकाला? जेड हमने कहा बीटा एंगल। एंड जेड एक्सिस का एंगल क्या है आपके पास? गामा एंगल। तो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अल्फा एंगल, एक और विद इसके साथ वेक्टर आर के साथ ये यहां से क्लियर। वेक्टर आर के साथ कोई डायरेक्शन एक्स एक्सिस में एंगल बनेगा वो हमने क्या एंगल लिया? अल्फा। और आर का जो वाई के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या बन जाएगा? बीटा। और इसके साथ एंगल क्या बनेगा? गामा। जेड के साथ। Every one is the positive direction, not negative direction. The x for the cos alpha and y is cos beta and z is cos gamma. Every x is the positive direction. So then, what is the value of the cosine value of this angle? This is called the direction cosine. और these angles is called the direction angles. इनको हम क्या बोलते हैं? Direction angle. अब then cosine value of direction angles is called direction cosines. Direction cosine. This is not the direction. This is the direction angle, and then cosine value of the direction angle is called direction cosine. So now, then you can write here x cos alpha, cos beta and cos gamma. We are adding a value of the cos. Our direction cosine represented by the L, M and N. This is a standard value of the, this is represented by L, this is represented by the M, or this is represented by the N. Standard value of the direction cosine is represented by L and M. Done it? So this one is called the directions cosines. You are using the cosine here, then standard value also direction cosine को represent करते हैं, एलिमेंट्स से represent कर सकते हैं. After that direction ratios, directions. After that क्या है? इसके बाद क्या है? डायरेक्शन रेशियो. और डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन का जो प्रोपोर्शनल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन रेशियोज. जो डायरेक्शन कोसाइन को प्रोपोर्शनल वैल्यू जो होंगे उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन. और वैसे एल की वैल्यू हमने जो यहाँ पे एल इक्वल टू कितना होगा आपके पास? अगर यहाँ से हम पोजीशन वेक्टर से निकालेंगे तो इसमें एल सॉरी ओबी की वैल्यू कितनी आपकी ये थी, क्लियर. तो डायरेक्शन रेशियो को हम एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे x अपॉन वेक्टर r, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं y अपॉन वेक्टर r, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम z अपॉन वेक्टर r विद हेल्प ऑफ दिस. और व्हाट वैल्यू ऑफ द वेक्टर r है? x upon what is the x y z? x y z the coordinate of the positional vector. और इन्हीं x y z या a b c को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शंस रेशियोज. डायरेक्शन जो आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं इन्हीं का नाम क्या है? डायरेक्शन रेशियोज भी है. तो डायरेक्शन रेशियोज को हम क्या कर सकते हैं? इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं x² + y² + z². इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? y अपॉन √x² + y² + z². और इसको हम z अपॉन √x² + y² + z². So this is called the relation between direction cosine and direction ratio. ये पॉइंट पर ही ऐड किया गया. This is called the relation between the direction cosine and direction ratio. अब डायरेक्शन रेशियो देखो, डायरेक्शन रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में DRS के इसको शॉर्ट में. डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में लिखते हैं DCS और डायरेक्शन कोसाइन रेशियो को लिखते हैं DRS. क्लियर. तो डायरेक्शन रेशियो का क्या रिलेशन है? डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल abc से. यहाँ पे स्मॉल abc हो सकता है, x y z हो सकता है, एनीथिंग, बट दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज. क्लियर. तो डायरेक्शन रेशियो होता क्या है? मीनिंग में a upon l equal to b upon m equal to c upon n equal to constant. This value is called the direction ratio. सपोज हम इनको कैलकुलेट करें, एक वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियोज. और ये रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन्स. डन इट. इसमें कोई प्रॉब्लम्स?
Point clear? Next point. What is the next point? What is the next point? Types of vectors. Yeah. Types of Types of. Next क्या आपके पास? Types of वेक्टर. और टाइप्स ऑफ वेक्टर में आएगा फर्स्ट वेक्टर क्या आपके पास है? जीरो वेक्टर. तो फर्स्ट वेक्टर क्या है? जीरो वेक्टर. और जीरो वेक्टर क्या होते हैं? व्हाट इज द जीरो वेक्टर? जीरो वेक्टर पॉसिबल है? जीरो वेक्टर पॉसिबल है? जीरो वेक्टर पॉसिबल नहीं, पर दोज वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड जीरो इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर. क्लियर? जीरो वेक्टर हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे, पर जो कौन सा वेक्टर ऐसे ऐसे इंडिकेट भी करो और जीरो दिखाओ, पर दोज वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड जीरो इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर. देन इट सेकंड पॉइंट क्या? यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर में क्या होगा? दो वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड इज 1. दो वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड इज 1, द लेंथ इज 1 मीटर 1 किलोमीटर. या आफ्टर सॉल्विंग द मैग्नीट्यूड द रिजल्ट इज कम इज द 1. दिस इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट Co-initial vectors. कोइनिशियल मींस दो वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द कोइनिशियल वेक्टर. डन इट? डन और नॉट? मींस कोइनिशियल वेक्टर. थर्ड पॉइंट क्या है? कोइनिशियल वेक्टर. कोइनिशियल वेक्टर मींस दो वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट. दिस इज द कोइनिशियल वेक्टर. सपोज वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए इज कॉल्ड द कोइनिशियल वेक्टर. क्लियर? नेक्स्ट को Co-linear vectors. या Co-linear vectors. collinear vector. Those vector having the parallel is called the collinear vectors. For they have not restriction of the magnitude and directions. Collinear vector restriction of the magnitude and direction. Look here. Suppose this vector is the A and this vector is direction P, but both are the collinear vectors. Direction is same or not, magnitude same or not. This should not depend. This should not. What is the direction? What is the magnitude? But come in the parallel form. Clear? This is called the collinear vector. Next, Equal vectors. equal vector. Those vector having the equal magnitude or equal direction. This is called equal vector. Next क्या? Fifth, equal vector. ठीक है? वो एक collinear vector. Collinear vector is clear, but in this type vector, those having direction and magnitude is same. This is called the direction and magnitude is same. Then you can say कि vector are equal. Suppose direction is, suppose इसी vector AB is the equal vector, but BC is not equal vector because direction is changed. AB are equal vector because same direction और magnitude also equal. A equal to B. इनका मैग्नीट्यूड भी सेम आना चाहिए तभी इक्वल. ये नहीं मैग्नीट्यूड डिफरेंट आ रहा है और डायरेक्शन सेम है तो हम इक्वल करेंगे. दोनों चीज़ों को हम कंपाइल करेंगे. नेक्स्ट 6. Negative of the vector. Negative of the vector. नेगेटिव ऑफ द वेक्टर. नेगेटिव ऑफ द वेक्टर मीन्स कोई भी वेक्टर नेगेटिव कब होता है? जब उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं. मानो सपोज कोई वेक्टर हमारे पास है, ये वेक्टर है, ठीक, और इसी वेक्टर की हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस से वेक्टर हो जाएगा. क्लियर? सपोज हमारे पास कोई वेक्टर ए भी है गिवन. डन. अब इसको हम बी ए करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. पर ये नहीं कि एरो उल्टा लगाना है, एरो तो वही लगेगा डायरेक्ट. एरो में कोई चेंजिंग नहीं करनी कि उठा के आपने इसको ऐसा पटक दिया, इसको बी ए ऐसा नहीं करना. रॉन्ग. डायरेक्शन तो ऐसी आएगी, बट जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो डायग्राम ड्रॉ में आपका ऐसा ऐसा दिखेगा. क्लियर? बट इसका कंसेप्ट होता है ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए. But when we doing equal, then negative sign including in this type of vector is called the negative vector. Done it? Next, free vectors. Next क्या? Free vectors. नहीं, next point क्या था इसके बाद? Free vectors. देखो free vector का concept क्या है? जब आप जो भी vector हम पढ़ेंगे सारे free vectors ही आएंगे आपके पास. Free vector का क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई vector A है. Done? और एक वेक्टर हमारे पास बी ए है, पर इनको आपने ऐड करना है. क्या करना है? इनको
तो ऐड कैसे करेंगे, यानी अलग अलग वेक्टर्स हैं, इनको आप ऐड करना चाहते हो तो डायरेक्शन चेंज नहीं होनी, विदाउट चेंज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड व्हेन यू एडिंग सब्ट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग देन दिस कॉल्ड द फ्री वेक्टर, नॉट डिवीजन हियर. सपोज यू आर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग, देन हाउ इसको हमें डायरेक्शन ये नहीं ना, वेक्टर ए या इसको ऐसे कर सकते हो वेक्टर बी, या हम क्या कर सकते हैं वेक्टर बी को हम पहले लिख सकते हैं यहाँ पे, अब वेक्टर ए को ऐसा कर सकते हैं. डन इट. तो ये फ्री वेक्टर को कैसे आपने करना है अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. डन. पर डायरेक्शन सेम है, ए की डायरेक्शन ऐसी है तो ऐसी ही रहेगी, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो. बी की डायरेक्शन ऐसी है तो वो ऐसी ही रहेगी, चाहे उसको कैसे भी हम. ऐसा नहीं चलता कि हम उसको बी की डायरेक्शन को नीचे करते हैं. डन. यस, नोट डाउन एंड गो.